दीवानी हलचल की टीम आज पहुंची है लुहारू रोड पर स्थित सिटी का बहुचर्चित स्कूल दी आर्यन स्कूल में। आइए आपको स्कूल के अंदर लेके चलते हैं और पता करते हैं स्कूल के बारे में जानकारियां कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इस स्कूल को सिटी के और स्कूलों से अलग करती हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है दी आर्यन स्कूल की बिल्डिंग। आइए अंदर चलते हैं और इकट्ठा करते हैं स्कूल के बारे में जानकारियाँ। ये है स्कूल का रिसेप्शंस। पेरेंट्स और गार्जियंस यहाँ आकर स्कूल के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। तो अभी पहुँचे हैं हम क्लास 4 में और पूछेंगे दीपिका मैम से कि किस तरह से बच्चों को इस माध्यम से स्टडीज़ दी जा रही हैं। Evergreen forest and what are evergreen? When do evergreen forests remain green throughout the year? Yes. Class 4th wisdom, and here we have our smart board, and through this smart board and our normal classroom structure, we are I am explaining the forest types of forest, and the students are answering. This is revision going on for the forest topic 1 forest. चौंकाने वाली बात है कि 3rd क्लास से बच्चे फ्रेंच की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अभी हम उन मैम से पता करेंगे किस तरह से क्लास पर। मैम कितना रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों को फ्रेंच क्लासेस में 3rd से? It's a lot of French. They are very interested in learning French. They are like, yes, we are learning French. It's something new to us. Excited, interested, and they have so many of doubts. They are keen to know everything. जी। तो बच्चे कितना रिस्पॉन्स दे पाते हैं? क्या फ्रेंच को समझ पाते हैं बच्चे? Yes, they are able to understand. At the initial days, it was hard, but now at the end of the session, they are pretty much familiar with the words. They answer. Bonjour, je m'appelle Kavya, je suis étudiante, j'étudie en classe 3 à l'école Aryan, j'habite Bhiwani, merci beaucoup. तो अभी पहुंचे हैं हम स्कूल के कंप्यूटर लैब रूम में और पता करते हैं कि किस तरह से बच्चों को कंप्यूटर की, ITI की और डिजिटल नेशन की, जो कि इंडिया का सबसे मेन प्रोजेक्ट है डिजिटल नेशन, उसकी तैयारियां कैसे करवाई जा रही हैं। तो बच्चों को कैसे ITI की तैयारी, कंप्यूटर की तैयारी करवाई जा रही है? Sir, we are like trying that every student should be sitting on a separate machine. We have number of softwares, whatever included in their syllabus, and like that they are doing it by themselves. कौन सी क्लास से यहाँ कंप्यूटर की जो है? Sir, from class 1 onwards. Class 1 onwards, our students are very much, used to familiar with the system. They can switch it on, switch it off. They are working with the softwares. These are class 3 students. You can see how well they are working on the systems practically. तो अभी आपको हम दिखाएंगे साइंस लैब का। अभी सारा चित्र आपके सामने होगा। साइंस लैब में अभी हम जा रहे हैं। क्या क्या इक्विपमेंट है, कैसे कैसे जो है लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल्स जो दिखाए जा रहे हैं साइंस के, क्या आपको फील? सर, बच्चों को अभी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन बच्चों से ही करवाया जा रहा है ताकि वो करके अच्छे से सीखें। सिर्फ देखने से बच्चों को समझ नहीं आता, करने से ज़्यादा समझ में आता है। तो बच्चों को करवा के उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकें। अभी फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ये प्रोसेस अभी करवा रहे हैं बच्चों से। My name is Bhavika and I am Mehak. We are the student of class 4th from the Aryan school. So today we are doing here science activities. We will do sedimentation, decantation and filtration. Sedimentation and this is decantation. Now our third activity is filtration. तो ये जो आप देख रहे हैं स्कूल का स्केटिंग ग्राउंड, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपकी सिटी के हैं किस तरह से बेहद अद्भुत स्केटिंग करते हुए। Today a good story time with our finger puppets. Show me your finger puppets.
ये है स्कूल का स्विमिंग पूल और आइए मैम से जाकर स्विमिंग पूल के बारे में और अधिक जानकारियाँ लेते हैं। Now I will be introducing you to our indoor swimming pool. This is the swimming pool which is 25 meters in its length. The depth of the swimming pool is very low here and it goes on increasing by the time we are reaching towards the end. This swimming pool starts from classes 1st onwards. We have the timetable also. This is an indoor auditorium cum seminar hall. It has a sitting capacity of 300 people at a time. It is fully air conditioned and also equipped with the JBL speakers. तो अभी हम पहुंचे हैं द फूड लैब में। आप देख रहे हैं द फूड लैब और इसके अंदर दिखाएंगे किस तरह से फूड्स का इंतजाम आज स्कूल के माध्यम से के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर बच्चों के लिए कैंटीन का भी पूरा प्रबंध किया हुआ है, पूरा मेस यहाँ पे बच्चों का है। और अभी आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल कैंटीन के अंदर बना हुआ है। स्कूल में किस तरह से हर प्रकार का खेल बच्चों को सिखाने के लिए वेल एजुकेटेड कोचों की यहाँ पर सुविधा दी गई है। साथ में ग्राउंड आप देख सकते हैं, फुटबॉल ग्राउंड और ये क्रिकेट की पिच जो बहुत कम देखने को मिलती है, भीम स्टेडियम जैसे बड़े स्टेडियमों में ही देखने को मिलती है। बास्केटबॉल की, कबड्डी। What is in the center of your drawing room? और मिसेज लक्ष्मी तोमर जी से अभी उनसे पूछेंगे कि किस सोच के साथ इन्होंने स्कूल स्थापित किया और क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही। सबसे पहले तो नमस्कार। आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ आए और सारी जानकारियाँ आपने स्कूल के बारे में हासिल की हैं। जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हमने मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में इसे शुरू किया है। स्कूल की जो पूरी बिल्डिंग है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। हम लोग एकेडमिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। वी हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। इट्स बीन 14 ईयर्स ऑलरेडी। कैमरी रोड पे हिसार में द आर्यन स्कूल के नाम से ऑलरेडी वी हैव अ स्कूल। अप्रैल 2020 में यहाँ सबसे पहली एक्सटेंशन खुली है द आर्यन स्कूल की। और भिवानी में जैसा कि आपने बताया कि इंटरनेशनल लेवल की मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में और एक एकेडमिक पे जोर देते हुए एक रही है कमी, तो उसी कमी के चलते ये स्थापित किया गया है। और भिवानी शहर की बात करें तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। पहले साल आप भी जानते हैं 2020 में जिस वक्त स्कूल खुलने ही वाला था, एडमिशन्स भी हो चुके थे और अचानक से ये जो पेंडेमिक और कोविड की जो सिचुएशंस आई दैट हैड बीन वर्स, बट उन पे किसी का कोई भी जोर नहीं था। फिर भी आई हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ हार्ड वर्कर्स एंड दीज फैसिलिटेटर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है और उसी के चलते अभी ये दूसरा सेशन ही है स्कूल को और हमारे पास में 426 बच्चे हैं जो कि एक अच्छी संख्या मानी जाती है। और फीचर्स की अगर बात करें, आप सारा स्कूल विज़िट कर चुके हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको बात करूं आपसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ हमारा टाई अप है जिसमें बच्चों को 4 तरीके की स्किल्स सिखाई जाती हैं। उनका असेसमेंट भी होता है एंड आफ्टर दैट असेसमेंट बच्चों को सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। उसकी भी प्रिपरेशन की सारी जिम्मेदारी हमारी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो आप जानते हैं कि आजकल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी हम क्लास 2 के लेवल से तैयारी करवाना शुरू करते हैं। एक ख़ास फीचर है फ्रेंच लैंग्वेज जो 3rd लैंग्वेज के रूप में यहाँ सिखाई जाती है और बहुत टेंडर एज से क्लास 3 ऑनवर्ड वो जो है हम सिखाना शुरू करते हैं।
देखिए, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि सिर्फ एक एकेडमिक्स नहीं बट बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले, और उसको हम सुनिश्चित करते हैं। हर एक बच्चे की टर्न आती है, कुछ भी प्रेजेंटेशन देना हो या स्पेशल असेंबलीज़ के माध्यम से हर एक क्लास की टर्न आती है जिसमें वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रिपरेशन की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक एकेडमिक्स नहीं लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को इतना एक्सपोजर मिलता है जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है बच्चों में। हर एक बच्चा जीनियस है, बट किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ उसका टैलेंट बाहर निकालने की। एंड वी एज अ टीम वी यूज टू जस्ट मेक इट श्योर कि बच्चों को किस तरीके से क्या मौका दिया जाए और बच्चा निकल के आगे आए किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट और एक इंडिविजुअल अटेंशन है जो क्लासरूम में चाहिए होती है हर एक बच्चे को, वो हम प्रोवाइड करते हैं।